Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today we are going to cover our last topic of chapter number 3, that is the accounting principles. As we know that the accounting principles are divided into two main parts, that is accounting concepts and accounting conventions. In the last 3 lectures we have already covered this topic, the accounting concept. And today we are going to cover our very last topic of this chapter, that is the accounting conventions. So, the accounting convention, let's start. Accounting conventions. Accounting conventions are the customs and the generally accepted practices which are adopted either by general agreement or common consent among the accountants. So, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारे कुछ कस्टम्स हैं, कुछ हमारी जर्नली एक्सेप्टेड बिलीव्स हैं, हम जर्नली एग्रीमेंट करके या फिर अपनी कंसेंट देके हम इन प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करते हैं. तो बेटा जी हमने कहा कि जो भी हमारे कंसेप्ट थे अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो होते हैं वो कंसेप्ट जो लॉ सेट करता है, लेकिन कन्वेंशंस वो आइटम्स हैं, वो टर्म्स हैं, वो बेसिक्स हैं जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं. ये कौन बनाता है? ये कोई लॉ की तरफ से नहीं बनता है, ठीक है जी. इसमें कोई लॉ नहीं होता, इसमें हम पर्सनली खुद अपने कस्टम्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जर्नली इन आवर डेली लाइफ, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एज पर द हिंदू ट्रेडिशन हमारे पास ये बिलीफ होता है कि हमें ट्यूसडे और थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना, तो अगर हम खाएंगे तो वो बुरा होता है. अगर हम वो कस्टम देखें, तो अगर हम वो बिलीफ को माने, तो हम उसे कहते हैं हमारा विश्वास, हमारे बिलीव्स, हमारे कुछ रिवाज, तो वो क्या हुआ? हमारा कस्टम. लेकिन अगर हम कहें कि ट्यूसडे और थर्सडे को अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपको लीगल पेनल्टी लगेगी, तो वो क्या हो गए? एक लीगल टर्म, तो वो एक लीगली पेनल्टी में चले जाएगा. तो इसी तरह हमारी अकाउंट्स में भी कस्टम्स हैं, कुछ रिवाज हैं. हमें यहाँ पे रिवाज नहीं कह सकते, ये हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे कुछ बिलीव्स हैं, और ये जर्नली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस से हमारे पास ये बिलीव्स आए हैं. तो हम इन बिलीव्स को अडॉप्ट करते हैं आइदर बाय जर्नल एग्रीमेंट, एक जर्नली हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, या फिर हमारे पास कॉमन कंसेंट हो जाता है अकाउंटेंट्स का. अकाउंटेंट्स एक अपनी कंसेंट प्रेजेंट करके इस जर्नली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करते हैं. तो हमारे पास बच्चों, हमारे पास जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की 3 टाइप्स. We have 3 types of accounting conventions. First is the convention of full disclosure. Second one is the convention of materiality. And the third one is the convention of conservatism or prudence. So we are having 3 basic concepts, 3 basic conventions, So first one is the convention of full disclosure, second is convention of materiality, and third one is the convention of conservatism. So I am first starting with you the basic brief meaning of these 3 terms, then we will study about these 3 terms in detail. So according to these conventions, our first convention says we have to disclose each and every information in our business,
which is very important for our enterprise. यानी कि हमें अपने बिजनेस में हर एक बिजनेस इंफॉर्मेशन, हर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है. सेकेंड जो हमारे पास कन्वेंशन है उसका कहना है कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में किया है फुल डिस्क्लोज करना है, उस फुल डिस्क्लोजर में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम वो हर इम्पॉर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें जिसके बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती. सो द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी सेज दैट ईच एंड एवरी आइटम which is not that much important should not be disclosed. Only those important items which are very important, which is very material, very informative material for the financial business, only that information should be disclosed in the financial statements. And third one is the concept of the convention of conservatism. So conservatism says, according to this convention, all the losses should be recorded, but all the unrealized gain should be ignored. Done? So now we will do the very first topic, that is the convention of full disclosure. So write it down in your notebook, students. Convention of full disclosure. बेटे ये जो हम 3 टर्म्स करेंगे, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो आपकी बुक में थ्योरी के यही मेन चैप्टर्स हैं और आपको इन्हीं चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से करना है. इफ़ यू विल इग्नोर दीज वन, then you will not be able to cover your syllabus, you will not be able to understand accountancy, you will find some difficulties in understanding even the accounts of class 12th. So these are the basic chapters you must understand. So write down first convention of full disclosure. According to this convention, all significant information related to economic affairs of the business should be completely disclosed. So this term means full disclosure means सारा डिस्क्लोज करना है, हर वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर वो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है. हमने बिजनेस में क्या एक्टिविटी की, क्या ट्रांजैक्शन की जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, जिसका हमारे प्रॉफिट के ऊपर, हमारे बिजनेस के पोजीशन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा. हमें हर एक वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपनी बुक्स में कम्प्लीटली डिस्क्लोज करना है. ठीक है जी. क्योंकि जो हमारी बुक्स होती हैं, जो हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर हमारी इसी बुक्स में हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही प्रोवाइड की जाएगी, हम अपने बिजनेस की हर एक बात को प्रॉपरली इन बुक्स में डिस्क्लोज करेंगे, तो हमारी जो ये बुक्स हैं हमारे यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी. तो हमारे यूज़र्स तक हर वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी जो हमारे बिजनेस के बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जिसके ऊपर हमारे यूज़र्स डिपेंड हैं. ठीक है.
तो हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर एक आइटम, हर एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में प्रॉपरली डिस्क्लोज़ करना है, ताकि जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिल्कुल सही आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बने, हमारी बैलेंस शीट करेक्ट पोजीशन हमें डिस्क्लोज़ करे। तो इसमें हम कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है कि बच्चे हमारे पास एक क्लेम है, अ क्लेम इज पेंडिंग। सपोज एक क्लेम है वो हमारा पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो हमारे अगेंस्ट द एंटरप्राइज। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन हम अपनी बुक्स में नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो बुक्स है वो इनकम्प्लीट बन जाएंगी। एग्जाम्पल एक और हो सकती है, हमने कहा हमारी जो बुक्स हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू पे नहीं रिटन डाउन होती, क्योंकि हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट। तो हमें अपनी मार्केट वैल्यू का भी तो पता होना चाहिए। तो हमारी बुक्स में हमेशा जो हमारी मार्केट वैल्यू है एसेट्स की, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की, वो हमें एज अ फुट नोट अपनी बुक्स में दिखानी होती है। इवन दो हम अपनी बुक्स को कॉस्ट पे बना रहे हैं, है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला कंसेप्ट किया, लेकिन हमें अपनी बुक्स में जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है उसे एज अ फुट नोट शो करना होता है। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर मीन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें हर वो ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और जो यूज़र्स अगर हमारे सही इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हमारे करेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेंगे, करेक्ट बैलेंस शीट बनेगी। और एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हम अपनी बुक्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे दिखा रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू एज अ फुट नोट अपने यूज़र्स तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारे यूज़र्स उस फुट नोट के बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकें। ठीक है जी, अगर हम कॉस्ट पे दिखाएंगे देन नो वन विल बिलीव ऑन अस, बिकॉज वी हैव टू मेक अ कंपैरिजन। डन। सो नाउ आफ्टर दिस we will do our second concept. That concept is concept of prudence. Second concept that we are having is the concept of, second concept is the convention of materiality. मटीरियलिटी वाला कंसेप्ट बेटा आपका फुल डिस्क्लोजर के साथ बहुत मैचिंग में है, उसी की कॉन्टिन्यूशन में है ये कंसेप्ट। आई एम रिपीटिवली यूजिंग द वर्ड कंसेप्ट। कंसेप्ट डजंट मीन्स कि कंसेप्ट हम अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल रही हूँ मैं। कंसेप्ट मीन्स जस्ट अबाउट द टॉपिक, ठीक है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर वर्क, particular convention that we are doing. So convention of materiality, as per this convention, items which are unimportant items they should be left out or merged with other items or no need to disclose such items in financial statements. So हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स किए हैं कि जो हमारे पास अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, जो हमारे बिजनेस के एक इतनी इम्पॉर्टेंट आइटम नहीं है, हम वैसे ही एक एंट्री बना रहे हैं कि जी 100 रुपीज़ की ये आइटम है, 10 रुपीज़ की ये है, तो वो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स जो हैं हम उन सभी को मर्ज करके एक कंप्लीट एक अकाउंट बना सकते हैं,
है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं उन सभी आइटम्स को मर्ज कर सकते हैं, या हम उन्हीं आइटम्स को इग्नोर कर सकते हैं, या उन आइटम्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं फुल डिस्क्लोजर करना है हमारे बिज़नेस में, हम कहते हैं हमारा बिज़नेस जो है वो हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो कि वो हम इम्पॉर्टेंट भी मिक्स कर रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट भी उसमें मिक्स कर रहे हैं। अगर हम ये दोनों आइटम्स मिक्स कर देंगे तो हमारी जो बुक्स हैं वो ओवरबर्डनड हो जाएंगी, तो हमारी बुक्स की बहुत ज़्यादा हमारे पेजेस बन जाएंगे, बहुत बड़ी बुक बन जाएगी, तो नो वन विल बी इंटरेस्टेड, हमारी बुक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो हमारी जो बुक्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए। उसके लिए फुल डिस्क्लोजर में ये पॉइंट ऐड अप किया गया है, हमें सिर्फ वही आइटम्स को डिस्क्लोज़ करना है बुक्स में जो हमारे बुक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मटीरियलिटी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइटम्स नोट डाउन करनी है, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो हम छोड़ सकते हैं, हम उन्हें दूसरी आइटम्स के साथ मर्ज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और या फिर उन्हें लिखने का कोई डिस्क्लोज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम उन आइटम्स को टोटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ द convention which is in continuation with the convention of materiality। जो हमारे पास materiality टॉपिक है वो हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का ही कॉन्टिन्यूशन है। तो अब हमारे पास थर्ड जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो हमारे पास जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है बेटा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे पास 5 स्टार टॉपिक है। इवन इन बिजनेस ये कन्वेंशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी। सो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसी के बेसिस के ऊपर हमारी बहुत बुक्स जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं, प्रॉपरली मेंटेन्ड होती हैं। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, मार्क इट एज 5 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बेटा सबसे पहले हमारी बुक में जितने भी सभी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं हम उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अनरियलाइज्ड गेन्स हैं हम उन्हें अपनी बुक में इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये 2 वर्ड्स हैं मेन कि हम लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं और अनरियलाइज्ड जो गेन है उन्हें इग्नोर करते हैं। सो राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल anticipated losses should be recorded in books of account। But all anticipated or unrealized gains should be ignored। इसका मतलब है हमें अपने बिजनेस में, अगर हमें पता है कि हमारे बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं लेकिन वी डोंट नो द अमाउंट हाउ मच लॉस वी कैन फेस, तो अगर हमें पता है हमारे बिजनेस में चांसेस हैं कि हम लॉस फेस कर सकते हैं, तो हम उसका एक एस्टिमेट लगा के अपने बिजनेस में पहले ही जर्नल एंट्री पास कर देंगे। लेकिन अगर हमें ये भी नहीं, अभी ये भी है कि हमारी गेन्स भी हो सकती हैं, कुछ अनरियलाइज गेन पड़े हैं हमारे, वो आ सकते हैं, हम उन गेन्स को नहीं बिज़नेस में रिकॉर्ड करते। अगर हम फालतू के अपने गेन्स बिज़नेस में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो हमारी वो प्रॉफिट के ऊपर हमारा टैक्स बढ़ जाएगा।
इसीलिए हम अपने लॉसेस को ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जितने भी लॉसेस हैं उन्हें फेस करने के लिए हमारे पास पैसा अलग से पहले ही सेपरेट करके रखा हो। सो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने बिजनेस में प्ले करते हैं एज अ सेफ रोल, प्लेइंग सेफ। सो इस कंसेप्ट का, इस कन्वेंशन का कहने का मतलब है हमें अपने बिजनेस में सेफ खेलने का भी एक तरीका आना चाहिए। गेन होगा रिकॉर्ड कर लेंगे, फ्यूचर में होगा, जब होगा वी विल रिकॉर्ड, लेकिन हमें पता है एक पर्टिकुलर लॉस हो सकता है तो वी शुड फटाफट हमें उसे रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। तो हमें अपने लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना है जो एंटिसिपेटेड है, लेकिन हमें अपने गेन्स को नहीं बिजनेस में रिकॉर्ड करना जो अभी रियलाइज नहीं हुए। एग्जाम्पल बच्चों, हमें पता है कि हमारे बिजनेस में बैड डेट हो सकते हैं। हमने कहा था डेटर्स होते हैं, डेटर्स मीन्स जिनसे हमने पैसा लेना है। बैड डेट हो गए वही डेटर जो बैड हो गए, मतलब कि वही डेटर जिनसे हमने पैसा लेना है लेकिन अब वो लोग हमें पैसा नहीं देंगे, हमें लग रहा है कि वो लोग हमें पैसा नहीं देंगे, तो हम इन्हीं बैड डेट्स के ऊपर प्रोविज़न बना लेते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें डाउटफुल है कि ये हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, हमें पता है हमें इससे लॉस हो सकता है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिससे हमें लगे कि हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है फ्यूचर में, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, हमें पता है हमने डेटर से पैसा लेना लेकिन वो हमारे बैड डेट हैं, वो हमें पैसा दे नहीं रहे, हमें लगता है वो आगे भी नहीं देंगे, तो हम पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं। सपोज़ हमारे बैड डेट 5000 के हैं, हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि ये इंसान मुझे 2000 तो दे देगा, 3000 नहीं देगा क्योंकि उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, वो मुझे 2000 तक ही दे सकता है। तो हम वो 3000 जो हमें पता है हमारा डूब जाएगा, हम उसकी पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं कि हमें ये लॉस बिजनेस में हुआ, तो हम अपने प्रॉफिट्स को कम कर देते हैं ताकि हमारी बिजनेस की बुक्स जो हैं वो सही बुक्स बने, सही रिकॉर्ड हमारे बिजनेस में शो। एग्जाम्पल नंबर 2, हम अपने बुक्स में क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू पे whichever is less उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। whichever is less, वो अमाउंट जिससे हमें लॉस, इससे भी हमें लॉस हो सकता है, अगर कॉस्ट है, रियलाइजेबल वैल्यू है, जो हमारी लेसर अमाउंट होगी हम उसी पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे जितने भी लॉसेस हैं ऑलरेडी कवर हो जाए। तो बच्चों, अगर हम इन लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी बुक्स पे? तो हमारे पास, अगर हम ये लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 मेन इफ़ेक्ट हमारी बुक्स पे पड़ेंगे। नंबर 1, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें खर्चा डाल रहे हैं। हमारे पास 10,000 थे प्रॉफिट्स नेट, लेकिन हमने लिख दिया कि हमें ना 2,000 का लॉस हो सकता है, प्रॉफिट में से लॉस माइनस किया, 8,000 रह गए। तो कहीं तो हमने 10,000 लिखने थे, कहीं हमने 8,000 लिखे हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए, लेकिन हमारी बुक्स एक्यूरेट पोजीशन बता रही है। सेकंड क्या हो सकता है, जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो हमारे एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लॉस है, लॉस मीन्स हमारी लायबिलिटी है, हमें उसे लॉस को कवर करना पड़ेगा, तो हमारी वो लायबिलिटी बढ़ जाएगी और एसेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम इन सभी कंसेप्ट कन्वेंशंस को लेके चलेंगे, इससे हम अपने बिजनेस में अच्छा रोल प्ले, सेफ खेल सकते हैं अपने बिजनेस में। प्लस अगर हम लॉसेस के लिए पहले ही अपनी प्रोविजंस बना के रखेंगे, पहले ही हमने अपने लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे बिजनेस में सीक्रेट प्रॉफिट्स आ जाएंगे।
हमारे बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व बन जाएंगे। हमने पहले ही पैसा रखा था, चाहे हमारा लॉस हुआ या ना हुआ, चाहे सपोज इस एग्जांपल में वो बंदे ने हमें 3,000 रुपये भी दे दिए जिसका हमें डर था कि वो देगा नहीं, तो वो एक पैसा सेपरेट रखना शुरू कर देते हैं हम अपने लॉसेस के लिए। तो वही पैसा जो हमारे पास सेपरेट पड़ा है और हमारा बाय चांस वो हमारा पैसा हमें वापस मिल गया है, तो हमें पैसा भी वापस मिल गया और हमारी प्रोविजंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे हमारे सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द होल चैप्टर accounting principles, in which we have covered accounting concept. There were 11 accounting concept and accounting convention, which are 3 accounting convention. So dear students, please complete your notebook. Tomorrow we will start our very next chapter. See you tomorrow. Thank you.